Hello everyone. Two non-conducting solid spheres of radii R and 2R having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2 respectively touch each other. The net electric field at a distance 2R from the center of the smaller sphere along the line joining the centers of the spheres is 0. The ratio ρ1 by ρ2 can be. Now consider there are two non-conducting solid spheres of radii r and 2r. So let the radius be, that is r, and let this radius, and we have to find that the net electric field at a distance 2r from the center of the smaller sphere. Let the radius of the smaller sphere be r, and for the bigger sphere, the radius is, that is 2r from the center, and we have to find that the electric field at this point, and so the densities of the smaller sphere be, that is ρ1, and for the bigger sphere let it be, this is ρ2, and we have to find that the ratio of ρ1 by ρ2 can be. Now consider that the electric field due to the first sphere at a distance 2r from the first sphere to this point, and the electric field at this point will be in this direction, and let it be, this is E1, and for the second sphere the electric field will be, that is opposite direction, and let it be, this is E2, and so we have to find that the ratio of ρ1 by ρ2. So this can be written as, if the electric field of first sphere, and for the second sphere let it be, this is first and this is second, so the electric field should be equal, and so E1 is equals to E2, and we can calculate the electric field E1. So we first calculate that E1 is equals to, written as, that is K into, let the charge on this sphere be, that is Q1, and for this let it be, this is Q2. Therefore E1 can be written as, this is equals to K into Q1 divided by, that its radius is taken to be, that is 2r, so this is 2r whole square, and we know that the value of k can be written as, this is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, and so this can be written as, that is q1, and q1 charge can be written as, the density is ρ1, so this is ρ1 into 4 by 3 pi r cube, and whole divided by, that is, this is equals to 2r square, and so this becomes, that is 4r square, and so 4 pi and 4 pi will be cancelled out, and so r square and r square will be cancelled out, so there is 1r, and so its value comes out, this is equals to ρ1 into r divided by, and this becomes, that is 4 into 3, so this is 12 into epsilon naught. Let it be equation number first. Now E2 can be written as, that is E2, and we see here that is E2 is due to the bigger sphere, and this is inside at this point, so for the inside the electric field can be written as, and this value can be written as, this is equals to rho into r divided by 3 into epsilon naught, and this is the electric field inside due to the bigger sphere, and density is here, that is ρ2, so this is ρ2, and r can be written as, the radius is taken to be, that is r, and so we see here this is r, and so this distance becomes, that is r, so we put the value, that is small r is equals to capital R, and so this is, that is 3 into epsilon naught, and let it be equation number second. Now we see here that is E1 is equals to E2, so we equate this equation and we get the value of, that is ρ1 by ρ2, so this value can be written as, that is ρ1 into r divided by 12 into epsilon naught is equals to ρ2 into r divided by 3 into epsilon naught, and so r and r will be cancel out, and epsilon naught will be cancel out. Therefore the value of ρ1 by ρ2, and this value can be written as, this equals to 12 divided by 3, and it will be cancel out, and it becomes, that is 4. Therefore the ratio of ρ1 by ρ2 is equals to 4:1, so this is the value, that is 4. And now we check this option, and this option match with the option 4, so this is the right answer. I hope you understood. Thank you.
So hello everyone, today's question is, under the influence of a Coulomb field of charge positive Q, a charge negative Q is moving around it in an elliptical orbit. Find out the correct statements. So we have to find out the correct statements given below. So let us look. The statement is based on the topic electrostatic basically, which includes the concept of rotational dynamics as well. Here in this statement, it is written that there is a charge. So let us assume this is an elliptical orbit. Here a positive Q is standing over where and negative Q is moving around it in an elliptical orbit, so which is rotating around positive Q. So we can see that the system is consisting negative as well as positive charge, so which creates an isolated system. It means that the extended torque is 0 here. Might be we can write it as here dl upon 0 also. Here g is equal to the angular momentum where t is equal to time. From this concept we get to know that L among this became constant. L becomes constant, due to which the differentiation of the constant value is 0 always. Then the angular momentum also gets constant here. So due to this reason, we might get to know that the angular momentum of the charge minus Q is constant. So the option A is the correct option of this statement. हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड थिन मेटल रिंग ऑफ रेडियस r is fixed in xy plane and with its center at origin and a negatively charged particle p is released from rest at point 00 z0 and z0 greater than 0 then the motion of p हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा सर्कल है और ये बोल सकते हैं रिंग। ठीक है, और इसका जो एक्सिस है जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका एक्सिस ये है, जेड एक्सिस में है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। मतलब ये बोल सकते हैं ये हमारा जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, हमारा जो रिंग लाई कर रहा है ये हमारा एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अब ये दिया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं इसके पास चार्ज क्यू है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है और हम ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट पी पे रखा गया है ये मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक है, और इस पी पॉइंट को बोल रहा गया है इस पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा गया है। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सियल, मतलब एक्सिस पे। ठीक है, तो इसका एक्सिस यही है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है और ये ओरिजिन पे है। ठीक है, तो इसके एक्सिस में अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स पे है। ठीक है, और ये इसका जो रेडियस है ये आर है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो इस पॉइंट के चार्ज, इस DQ पॉइंट के चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। और सिमिलरली इसके पास जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। ठीक है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब ये हमेशा बाहर की ओर जा रहा है। और ये हमारा ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये हमारा जो भी फोर्स लगेगा एट एक्सिस पे टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा अगर हमारा चार्जेस नेगेटिव होगा तो। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा एक्सियल पोजीशन पे ये होता है। ठीक है, के क्यू एक्स डिवाइड बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ड्यू टू द रिंग के कारण एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर फोर्स देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इक्वल टू होता है हमारा के क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे क्यू नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हमने बता दिया कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइड बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये पहला ऑप्शन दिया है कि ये पीरियोडिक होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड नॉट 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है,
तो मैंने जो x रखा है ये हमने मान लिया कि x इक्वल टू जेड नॉट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में ए में z इक्वल टू क्या है हमारा, x इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। x इक्वल टू जेड नॉट है तो ये बोल रहा है कि जो जेड नॉट है अगर ये जिसको जीरो से इन्फिनिटी करते हैं, जीरो से इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। अब देखो ये देख लेना पीरियोडिक मोशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे आया तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल मान लेते हैं इधर आ गया, ठीक है। ये पार्टिकल जैसे ही इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स फिर किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सियल पोजीशन पे ऐसे होगा और ये हमारा जो चार्जेस है नेगेटिव है, तो चार्ज नेगेटिव है, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स हमारा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा मोशन, ठीक है। तो ये मतलब ये चार्जेस कभी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे ये क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन करते रहेगा। तो हमारा ये बोल रहा है ये पीरियोडिक मोशन होगा, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब ये पीरियोडिक मोशन करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी ऑप्शन में क्या दिया है, बी ऑप्शन में यहाँ पे दिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जब जीरो से जो जेड नॉट होगा आर के बराबर होगा, मतलब जो जेड नॉट होगा जीरो से लेके जेड नॉट इक्वल टू आर होगा, ठीक है। अब देखो जेड नॉट इक्वल टू आर होगा तो ये बोल रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करता है जब इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, मतलब एफ होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर साइन के साथ रखेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पता है ये है के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ x का वैल्यू कितना, जेड नॉट है, जेड नॉट इक्वल टू इस क्वेश्चन में दिया है कि हम r तक ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू जेड नॉट पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू के इंटू क्यू इंटू जेड नॉट डिवाइडेड आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट के पावर 3/2 ये दिया है। जो हमारा जेड नॉट है, x जो है जेड नॉट है, अब बोल रहा है कि ये इक्वल्स टू आर के बराबर है। तो अगर हम जेड नॉट इक्वल्स टू आर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ये जगह माइनस के इंटू क्यू और जेड नॉट इक्वल्स टू आर पुट कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये जेड नॉट इक्वल्स टू आर, तो 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 इंटू आर स्क्वायर के पावर ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू के इंटू क्यू इंटू आर डिवाइड ये आ जाएगा हमारे पास 2 के पावर 3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यू। तो यहाँ से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड 2 के पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर, और आर इक्वल्स टू हमें यहाँ पे पुट करना है एक्स, जेड नॉट इक्वल्स टू आर है, तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं जेड नॉट के पावर 2 डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ से पूरे आर इक्वल टू जेड नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एफ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से एफ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड नॉट। अगर ये आएगा तो हम बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब सी ऑप्शन बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जब जेड नॉट होगा बहुत ही छोटा होगा आर से, ठीक है। तो मतलब जो जेड नॉट है बहुत ही छोटा होना चाहिए आर से। तो हम यहाँ से हम फोर्स जानते हैं ये होता है माइनस के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। और x इक्वल टू जेड नॉट है तो जेड नॉट इक्वल टू पुट कर देते तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू जेड नॉट आ गया डिवाइडेड ये आ गया जेड नॉट के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ पे दिया है कि जेड नॉट बहुत ही छोटा है, इसका मतलब जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बोल रहा है जेड नॉट बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि आर बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम लिख देंगे इसको तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के क्यू इंटू जेड नॉट डिवाइडेड ये जेड नॉट आर स्क्वायर के जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या मिल गया, एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया माइनस जेड नॉट, तो इसका मतलब इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और इसको हम यहाँ से एम इंटू ए कर लेंगे, ठीक है। और ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जेड नॉट कर लेंगे तो वहाँ से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, तो हमारा ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिया है कि सच दैट द पी
क्रॉसेज ओ, अब पी को जैसे ही क्रॉस करेगा बोल रहा है इट कंटिन्यूज टू मूव इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जैसे ही ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल आएगा जिसका माइनस क्यू चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, बट इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये बोल रहा है कि इट विल कंटिन्यू टू मूव इन जेड एक्सिस टू द इन्फिनिटी। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, क्योंकि इस पे फोर्स लगने लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये किसी पोजीशन तक जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन कर। तो हमारा इसका केवल आंसर होगा ए एंड सी, तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।